Hi everyone, welcome and good morning. It's 6:42 a.m. and today is 8th of November. I am making this vlog because I just wanted to and I've never posted since so long. Let me tell you one thing. कल मैं रात 3 day pattern से वापस आई हूँ. It was very hectic 3 day pattern. Even though the perfect rest was there, but I was jet lagged क्योंकि मैंने पूरी रात की flight operate करी थी and my whole day got wasted. So अभी my sister she is sleeping. That's why I'm talking थोड़ा slow and मैं we both were sleeping together. Then वो टेढ़ा बेड़ा लेट रही थी तो फिर मैं इस रूम में आ गई and then मैं 4 बजे something उठ गई and after that I couldn't sleep. मैं 1 बजे something सोई थी. This is what happens, I guess. Puri sleep schedule is messed up and eating habits. I just had namkeen, man. सुबह इतनी सुबह namkeen. I just miss the girl जो healthy खा रही थी. But the thing is, I'll tell you, मैं healthy खाती भी थी एंड फिर भी मुझे एक्ने होता था तो मेरा जो मोटिवेशन हो गया ना वो चला ही गया कि लाइक टू स्टे हेल्दी. बट आई एम गोना कीप इट अप. अब मैं फिर से हेल्दी खाऊंगी, सब कुछ हेल्दी करूँगी बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्ने, इट्स अबाउट माई बॉडी ऑल्सो. आप हेल्दी नहीं खाते हो तो इन्फ्लेमेशन होता है एंड आई एम वेरी सॉरी टू माई बॉडी बेसिकली कि मैंने बहुत जंक खा लिया. एंड आई ट्राई टू I'm so sorry. I'll try to tell it to my sister the same कि हेल्दी खाओ. But I'll show you कितना सुंदर व्यू दिख रहा है मेरी balcony से. It's so beautiful because it's morning. I thought sunrise बहुत सुंदर आएगा but today it's cloudy and इतना अच्छा नहीं दिख रहा है. Wait. Can you see? It's so beautiful. And I love it. I love being in Kochi. Everyone, जब भी मैं किसी को मिलती हूँ मैं उनको बताती हूँ आई एम फ्रॉम यूपी कानपुर. ओह है ठंडा हवा आ रहा है, सो गुड. सो जब भी मैं किसी को बताती हूँ आई एम फ्रॉम यूपी कानपुर, दे से कि अरे वाई हैव यू चोजन दिस प्लेस, लाइक आप कोची में क्यों हो इतना फार, दैट टू. बट आई टेल यू गाइस, आई ऑलवेज वांटेड टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. आई ऑलवेज वांटेड टू बी समवेयर वेयर आई डोंट नो द लैंग्वेज एंड आई वांटेड टू ग्रो बेसिकली. एंड आई सजेस्ट यू ऑल ऑल्सो, अगर इफ़ यू get a chance in your life ever to stay away from your family, to stay in a place where you don't know much people, you don't know the language, please stay. That will help you to grow. And living alone also helps you to grow. I finally, like, not finally, recently I've realized कि जब मैं भी किसी के साथ रहती हूँ, whether it's a roommate or with a friend, I just become very unproductive. Not unproductive, I become fully to, like, I give everything to them only. Like मेरा पूरा time, spending time with them. I forgot to record, I forget to like develop कुछ habits and all. And I believe it happens with everyone. सबके साथ ही ऐसा होता है. इसीलिए to grow in your life you have to be alone for some period. आई बिलीव लाइक अगर आप 21 से लेकर 25 तक अकेले रह रहे हो अपनी लाइफ में, आपने बहुत सारी चीज़ देख ली हैं. आई डि नॉट मीन कि इट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट हैव फ्रेंड्स. यू शुड हैव फ्रेंड्स बट लिविंग अलोन बेसिकली, हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. सो आई टेल यू वन इंसिडेंट. सो मेरे घर में हमेशा पापा ही सिलेंडर लगाते थे, ठीक है. आई नेवर डिड दैट एट माई होम. I'm so sorry for the yapping, guys. It's 6:42 a.m. कौन ही सुनना चाहेगा. But I will obviously upload it by evening. But I don't have anything to do, so I thought let me just catch it up. I thought let me just put my thoughts out there. So I'm so sorry. फिर से मेरा कैमरा टूट ही जाएगा इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ. वेट मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ. I'll keep you guys here. I can't take risk. Sorry. So I was saying, so I'm just yapping. I hope you guys like it. I just want you guys to see this side of mine as well because I am done. Like I'm not done with shorts. It's just people, they don't know me out there. At first when I started YouTube, I always wanted people to know me because that's what I have been dreaming of recently. But shorts में इतना recognition तो नहीं मिलता. भले subscriber मिलते हैं but they don't actually know you. And also recently I've been meeting, like I've met a lot of subscribers of mine and thank you so much guys. आप मेरे पास आते हो and you say, but please don't mind जब मैं uniform में होती हूँ. I don't know how to react because if I'm in public or maybe in the aircraft, I can't hug you, I can't like hi hello कर सकती हूँ because the other person doesn't know why I'm doing that. So while I'm in my uniform,
I'm little bit conscious, and that's why I've changed my name. My formal name and work name is Anshuma and not Chavi. So that's why I did that, because मुझे लगा था it will be hard for people to recognize me. आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लॉजिक है. 3 मिनट से मैं चप्पड़ चप्पड़ कर रही हूँ, कैसे मतलब मैं ये सब डालूँगी. वेल, लेट्स फॉरगेट दैट. टुडे इज़ माई केयर वाला डे वेयर आई विल डूइंग हेयर केयर, नेल केयर. ओ माई गॉड, आई शो यू माई नेल्स. मैन, द स्किन इज़ डेड. कैन यू सी? I hope I can make you see. I used to have long nails, if you guys are following me for long time, but one fine day I was so anxious that I bit them very badly. Since then, koi growth nahi ho raha hai, nothing is happening. And also I've been getting my acne face back. So majorly it is because of the sleep schedule, sleep patterns, and I can't help with that. Kitna bhi, no matter what healthy I eat, but healthy I will eat for myself, for my body, not just for my skin. Obviously it will help skin, but I cannot do much about it because I never had acne prone skin, guys. I will tell you, okay, when I was till at my home, or till 1 year of my being in this job, नहीं था कभी भी. But recently it has started, because obviously कितना ही body आपकी ले पाएगी, right? And it's very difficult to stay healthy. Hotels में अच्छा खाना नहीं मिलता है, you know, dairy doesn't suit me properly because इतना अच्छे से digest नहीं होता है मुझे. And it's been very rough. I stopped eating eggs just because, you know, I was feeling guilty about it eating. Like now I don't know how to explain it too. मैंने छोड़ दिया था, बट देन अगेन प्रोटीन इनटेक नहीं हो पा रहा है. जब भी मैं होटल्स में जाती हूँ, पनीर के अलावा कुछ नहीं होता. पनीर मॉर्निंग में नहीं रखते हैं, सो बेसिकली एग होता है जो प्रोटीन होता है ना. अगर आप प्रोटीन से मॉर्निंग अपनी शुरू नहीं करते हो, यू क्रेव होल डे कुछ ना कुछ चपड़ चपड़ खाने का मन करता है, कचरा. सो देन आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स अगेन. सो अभी मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो ऑमलेट ही होगा, विच आई फाइंड फुलफिलिंग. बस 5 मिनट से मैं बातें कर रही हूँ. आई डोंट नो यू गाइज विल लाइक इट और नॉट, बट I have decided I will not treat YouTube as to like कि नहीं बस rage baiting content बनाना. I just wanna be out there. I want my real self to be there and really good. And today is all about my hair care, my nail care, my foot care, and the skin care also. So let's just start my day. First of all, I'll make my to-do list कि सबसे पहले मुझे क्या करना है. ओके, बहुत सारी मैंने यापिंग कर लिया. एंड इट्स नाउ द टाइम दैट आई शुड स्टार्ट मेकिंग माई टू डू लिस्ट, बिकॉज आई नो हाउ बैड आई एम विद दैट. सो ये मेरे पास एक डायरी है, गाइज. यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक डायरी एंड ऑल, इट जस्ट आई हैड दिस. सो मैं इसमें बना रही हूँ. आप किसी भी डायरी को उठा के मेरे साथ ही बना सकते हो इफ़ यू वांट. तो मैं पीछे से लिखूँगी. मेरी बहन का अलार्म बज रहा है. शी इज़ गोना गेट अप नाउ, बिकॉज उसका अलार्म बहुत तेज़ बजता है, बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सिंस आई एम नॉट डूइंग सेम. पहले तो मैं बनाती हूँ. अभी मुझे करनी है हेयर केयर, ठीक है. देन हेयर केयर के बाद आई डू ब्रेकफास्ट, उसके लिए भी बना दूँगी, वॉश करूँगी. सो हेयर केयर के लिए आई टेल यू गाइज, आई जस्ट यूज़ ऑयल and I mix it with one oil, so I'll show you. अभी मैं अपनी बहन को उठा देती हूँ. I guess it's time, or shall I make her breakfast? I don't know. मैं बहुत guys, अच्छा, I'm so sorry अगर मैं बहुत ज़्यादा yapping कर रही हूँ. It's just I always wanted to do that, and I don't know who's gonna watch this, but at least when I will be in 30s, I'll be like, yo, I have posted this on my YouTube, and but I will ask you guys, please go ahead and watch, or like post, be there, be out there. I've been feeling so insecure about myself and very demotivated, not able to post, feeling very stuck in my life. But then I realized it's just fine. It happens with everyone, but I'm lucky to have roof on my head, or to have my breakfast, or to have my like meals 3 times a day. My life is not that hard. It used to be, but it is not yet, not now. Okay, I'll show you. आ जाओ नीचे. जो पानी लेकर आओ मेरे लिए पहले. नहीं आऊँगा, प्लीज़ लेकर आ जाओ प्लीज़. सो गाइज, अभी हम हेयर ऑयलिंग करेंगे. एंड हेयर ऑयल के लिए मैं बताती हूँ,
एक तो पहले मैं यूज़ करती थी सोल फ्लावर का, यूज़ करती थी कैस्टर ऑयल, नो रोजमेरी समथिंग, एंड दिस इज़ फ्रॉम नट हैबिट, इट्स वेरी गुड। एंड उसके साथ में अराबी ऑर्गेनिक का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो है वो डालती हूँ इसमें, हेयर ऑयल में अपने। सो अभी बहन के भी लगाना है भाई, बट इसके साथ क्योंकि ये थोड़े महंगे ऑयल हैं तो मैं कोकोनट ऑयल भी डालती हूँ। आप भी कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, बट अभी मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है कोकोनट ऑयल मेरा। और जब ऑयलिंग करी जाती है ना, हमेशा स्कैल्प पे करी जाती है, रूट्स पे करके कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ऑयल, एक्सपेंसिव ऑयल। एंड ये रहा मेरा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जिसको मैं सिर्फ 1 2 3 4 ज़्यादा डाला है वैसे मैंने। और सेम चीज़ मैं मेरी बहन की करूँगी। वाह वाह क्या सेवा है, ओ माय गॉड मेरे आंसू आ गए। सुबह सुबह नहीं, खुशी लग रही है तो मैं बना दूँ ये सुबह सुबह, गंदी बात है। थोड़ा सा खा लो तुमसे। ये क्या खा रही हो, बताना जरा, तुम क्या खा रही हो? उठी हैं ये, अभी उठी हैं, बन मस्का खा रही हैं। ये कल मैं हैदराबाद से लेकर आई थी। अच्छा है ना, ये तो खा नहीं सकती, मैं खा लूँ। चलो मैं हेयर ऑयल तुम्हारे कर देती हूँ, पहले कर दो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कर देती हूँ पहले, मैं बाद में अपने कर लूँगी। मैंने अभी इसके बहुत अच्छी मसाज करी है, एंड शी विल डू माइन, एंड शी इज टॉकिंग टू योर सिस्टर। गुड मॉर्निंग। ठंडी लग रही है, ठंडी होने लगी क्या? स्टॉल डाले हो? से हेलो, ये रही हमारी छोटी बहन के, हेलो कर दे बहन। हेलो कर दे। गाइस चाची ने संपूर्ण रूप से अपनी बेटी मुझे अडॉप्ट कर दिया। चलो बाय बाय, नहाओ जाके। बाय। Okay guys, now it's my turn to get a good massage. It's better be good, okay? क्योंकि मैंने इसको सोने वाली मसाज दी एकदम। इसको भी देनी पड़ेगी। मतलब डर लगा, धीरे धीरे ढनंग है तो खत्म हो जाएगा बाबू वो। तो अब हम लोग कल पिकनिक पे जा रहे हैं, एक स्मॉल, सो हम थोड़ा स्किन केयर करेंगे। मैंने फेस वॉश कर लिया, इसने भी पहले कर लिया था, और हम लगा रहे हैं दिस फेस मास्क फ्रॉम डॉट की, पोल्यूशन एक्ने डिफेंस ग्रीन के मास्क है। इसको थोड़े थोड़े एक्ने यहाँ पे हो रहे हैं, कोची इज़ लाइक दैट ओनली, इतना ह्यूमिड है बिकॉज वी आर फ्रॉम नॉर्थ राइट। तो हम लोग ये एक्ने मास्क लगाने जा रहे हैं, एंड मेरे भी पोर्स मुझे क्लीन करने हैं, तो इट्स गुड। मैं जो चंदन वाला है वो वंस अ वीक लगाती हूँ, इसको मैं उसके वाला बीच में लगा लेती हूँ, क्योंकि पोर्स क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं बहुत मेकअप लगाती हूँ। सो नाउ वी आर गोना डू दैट। मैंने मेरी बहन की लगा दिया है, अब मैं मेरे लगा रही हूँ मेरा। वैसे यूजुअली इसको टी जोन एरिया में ही लगाया जाता है, बिकॉज टी जोन एरिया में ही एक्ने होता है। मैं फालतू उसके पूरे फेस पे लगा रही थी, नाउ आई रियलाइज। पहले मैं फॉक्सटेल वाला यूज़ करती थी, दैट वाज आल्सो गुड, ग्लोइंग मास्क था, बट मुझे नहीं लगता वो एक्ने के लिए कोई यूज़फुल था, तो वो तो ख़त्म हो गया। उसको मैं जनवरी से यूज़ करी थी, तो मैंने ये डाउट एंड की का लिया। ये भी देखो मैंने बहुत सारा यूज़ किया, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैंने भी बहुत सारा यूज़ किया, बट मैं ज़्यादा बताती हूँ, मतलब आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, मैं क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स बदलती रहती हूँ। इट्स फिनिश्ड गाइज, सो मैं इसको बंद करके रख दूँगी। इसका जो लिड था वो खो गया मेरे से, ऐसे ही होता है। इट्स डन। हाँ बाबू, गर्म पानी डालना। अब नाउ द बारी नेल्स के, नेल्स बहुत ही ज़्यादा चैप्ड हो गया है, तो मैं मेरे भी करूँगी, मेरी खुशी भी कर दूँगी, एंड देन कब तक ये ड्राई हो जाएगा। तो सारा स्किन केयर, सेल्फ केयर, और मैंने आज बाल धुल लिए थे, तो भी सीरम भी लगा लूँगी बालों में, हेयर सीरम। शी डजंट पुट, वो तो मैं बट लगाऊंगी, बिकॉज मैं तो बहुत हेयर वैक्स वगैरह लगाती हूँ। आई माइट लुक फनी टू गाइज, टू यू, मैं फ़नी दिख रही होंगी, तुम भी, वो भी फ़नी दिख रही है, सो हम दोनों बराबर हैं। सो नाउ हम करने जा रहे हैं नेल फाइल, नेल पेंट। पहले मैं तो नेल पेंट रिमूव करूँगी। तुमने लगाई कोई नेल पेंट? नहीं ना, उसने तो कोई नेल पेंट नहीं लगाई है। सो आई यूज़ दिस कारा का
स्विस ब्यूटी का और इनसाइड का भी मिलता है। पहले मैं इनसाइड का यूज़ करती थी बट ये मुझे लोकल मिल गया था तो मैंने लोकल शॉप से ले लिया। इससे पहले मैं नेल पेंट छुटा लूंगी छुपा लूंगी बोल रही हम पहले इससे नेल पेंट छुटा लेंगे। ये बहुत अच्छा है, इट्स नॉन अल्कोहलिक, तो ये ड्राई नहीं करता आपके एंड्स को। बट अभी मेरे नेल्स, आई डोंट नो कैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं। माई नेल्स यूज टू बी लॉन्ग एंड नाउ बहुत ही ज़्यादा शैबी और चैप्ड हो गए हैं। सो बेसिक नेल केयर करने वाले हैं उसके लिए। और हाँ, ये वादी का नेल क्यूटिकल ऑयल ये मैं यूज़ करती हूँ। दिस हेल्प टू ग्रो नेल, आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स बट इट्स वेरी गुड। और स्किन जो इसके आसपास के सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि मैं कैबिन में रहती हूँ and also if you are also cabin crew, please go ahead and buy this. This was also recommended to me by one of my colleague and since then मैंने इसका इतना एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने इतने लोगों को बताया, so I was like आप लोगों को भी बता देती हूँ because it helps really. मेरे पास एक बैग में है और एक मैं घर पे रखती हूँ so that मैं लगा सकूँ। अगर मैं ज़्यादा चपड़ कर रही हूँ तो I'm so sorry. This is how I am. मतलब मुझे लगता है मैं फुल डिटेल दूँ आप लोगों को, आधी डिटेल से आप लोग क्या ही करोगे। जब तक मास्क सूख रहा है तब तक हम नेल्स करेंगे। अभी मैं उसके नेल्स करूंगी। उसने गर्म है ना, पानी मिक्स तो नहीं करा ना, ये पानी ठंडा मिला के लेकर आएगा उसमें, प्लीज बेटू ले आओ। सो अभी शी वॉज डिपिंग हर नेल्स। तो डिप करने से क्या होगा, सो घर पे ही आप बेसिकली आप अपना मैनिक्योर घर पे ही कर सकते हो। मैंने पूरी नेल पेंट रिमूव कर ली है। नाउ आई एम गोना वॉश माई हैंड्स एंड देन डिप करूंगी वाटर में एटलीस्ट 5 मिनट्स। तब तक ये जो स्किन है सॉफ्ट हो जाएगी। देन मैं ये वाला फाइलर, जो फाइलर का ये वाला एंड होता है, कैन यू सी गाइज, ये वाला एंड, इससे मैं स्किन को ऐसे ऐसे करूंगी। मैं आपको कोशिश करूंगी मैं पूरा दिखा पाऊँ। आई होप आई विल डू माई बेस्ट। तो गाइज नाउ व्हाट आई एम गोना डू, मैंने पानी में हाथ सोक करके रखे थे। अभी ये जो स्किन है ये साइड वाला सॉफ्ट हो गया है। ये जो लाइट है, माई सिस्टर शी इज हेल्पिंग मी विद दिस, ये वाला लाइट मैं टैग कर दूंगी आपको, काफी अच्छा लाइट आता है। अभी मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर रखी है। अगर आप क्रिएटर नहीं हो तो भी दिस इज वेरी नाइस, इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, 500 के अंदर ही आ गया था। सो ये सॉरी मैं फिर से बहक गई। सो ये वाला जो स्किन है नाउ मैं इसको पुश करूंगी पीछे एंड देन ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पीछे फाइलर का होता है, ये वेका का फाइलर है, ऑनलाइन मिल जाएगा नायका पे, आपको टैग कर दूंगी। सो ये जो है इससे मैं स्किन को निकालूंगी, लाइक जैसे हम चॉप करते हैं जो डेड स्किन सेल होती है। सो हम लोग साइड से इसके जो जितना भी स्किन है डेड वाला वो निकाल देंगे। अभी पानी में डालने के बाद ये सॉफ्ट हो गया, कैन यू सी, इतना सारा डेड स्किन निकला हुआ है। ऐसे हम सब में फिनिश करेंगे। देन वी विल फाइल आवर नेल। उसमें आ रहा है ना, ठीक है। और साइड से जो शेप गाइस सॉ व्हाट आई डिड, मैंने उसको चॉप कर दिया। एक ही नेल का किया, बाकी नेल्स का मैं कट कराती हूँ। आई विल डू सेम विद माय सिस्टर एज वेल। नेल सारे फाइल हो जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ कैबिन में वर्क करने की वजह से मेरे जो नेल्स है काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं एंड वो चिप हो जाते हैं, लाइक दो हो जाते हैं। आई गेस एवरी कैबिन क्रू कैन रिलेट इट टू मी, और जो लोग ज्यादा एसी में रहते हैं। सो ये कोई डेफिशिएंसी नहीं है, बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से। तो नेल्स बड़े हो रहे हैं तो चिप हो जा रहे हैं, दो हिस्सों में निकल जा रहे हैं। सो उसके लिए मैं ऊपर से फाइल करती हूँ, बट यू डोंट हैव टू डू दैट क्योंकि आपकी नेल बेड खराब हो जाएगा। आई डू इट टू मेंटेन बोथ ऑफ द नेल्स एज एग्जैक्टली द वे दे आर। सो मैं इसलिए फाइल करती हूँ, आप मत करो। बाकी मैं इनको अपने एग्जैक्ट जो शेप मुझे चाहिए मैं उसमें करूंगी। और ऐसे ऐसे आप नेल केयर करोगे ना तो नेल टूटेंगे नहीं, और अगर टूट भी रहा है तो उसको पूरा मत निकालो। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइल दैट। अनइवन रहेगा कुछ टाइम के लिए, बट धीरे धीरे नेल ग्रो हो जाएंगे और काफी स्ट्रांग होंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज ज्ञान। बहुत ज्यादा हो गया नेल के बारे में, मतलब मैं 5-10 मिनट से तो नेल के बारे में बात कर रही हूँ गाइस। दिस इज व्हाट आई डू विद माई नेल केयर। अब मैं इसको फिनिश करने के बाद, मेरी कजन का करने के बाद, देन आई विल वॉश माई फेस एंड जब मैं फेस शेविंग करूंगी देन आई विल कम टू यू। बाय। सो गाइज मैंने फेस मास्क निकाल लिया बिकॉज 20 मिनट्स ऑलरेडी हो गए थे एंड मैंने नेल्स भी डन हो चुके हैं। मैं इसमें ऑयल लगा के रात में सो जाऊंगी। अभी आई एम गोना शेव माई फेस। आईब्रोज तो मैंने ऑब्वियसली पार्लर से बना ली थी। अभी मैं बस अपर लिप्स और साइड बर्न्स करने वाली हूँ एंड दिस फेस रेजर से कुछ भी नहीं होता गाइज, बिलीव मी, कुछ भी नहीं होता। इट्स रियली गुड। अगर जो भी मैं सब कुछ यूज करूंगी इस वीडियो में सब कुछ टैग कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज मैं बार बार नहीं बता सकती। सो आई एम गोना कीप यू गाइज हियर। I'm gonna keep you guys here. I know मेरा जो फेस है नहीं दिखेगा आपको, but this is what I'm gonna do. इसमें चश्मा पहनती हो तो मुझे ऑब्वियसली मिरर में देख के पास से करना पड़ेगा। अभी आई कैन नॉट सी एनीथिंग मतलब देख सकती हूँ बट इतना अच्छे से नहीं। सो आपको मैं बता देती हूँ, जिस दे देती हूँ शेविंग कैसे करते हैं, फेस शेविंग। तो जैसे मेरे अपर लिप है, सो आई जस्ट शेव माई अपर लिप्स। हाउ? सो जो मेरे अपर लिप्स है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर होती है उसी डायरेक्शन में करो अच्छे से।
हेयर रिमूव हो जाते हैं, साथ ही में स्किन को टाइट करना होता है तब करते हैं। और 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रखते, हमेशा 60 डिग्री, आई डोंट नो कौन सी डिग्री पर ऐसे रखते हैं और ऐसे स्लाइड करते हैं। एलोवेरा जेल फेस पे लगाते हैं, उसके बाद करना ताकि अच्छे से ग्लाइड हो सके। दैट्स इट। आई विल शेव माई फेस एंड आई कम लेटर। Hi guys, just look at my skin. It's glowing and like blushy हो रखा है। अभी हेयर केयर में लास्ट स्टेप ये बचा है। मैंने मैंने सुबह ये व्लॉग शुरू किया था और मैंने एंड नहीं किया, बट अभी मुझे मोटिवेशन है तो मैंने सारा केयर वगैरह कर लिया है। सो लास्ट में स्टेप में मैं बस हेयर सीरम लगाऊंगी। वैसे इसके साथ मैं थोड़ी इरेगुलर हूँ बिकॉज द थिंग इज मैं इसको फ्लाइट पे कैरी नहीं करती। आई एम वेरी, डर लगता है मुझे कि लीक कर गया, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव ये वाला, और ये वर्क भी अच्छा करता है। सो मुझे पसंद भी है। और इसको लगाने के बाद थोड़ी देर आप मसाज करो। बेसिकली मेरा, जब मैं ऐसे करती हूँ देखो मुझे, मतलब मम्मी ने बचपन में इतनी खींच की चोटियाँ बांधी है ना कि मेरी हेयर लाइन ही पीछे चली गई है। सो 2 ब्रेड बांध के हम लोग जाते थे। सो ऐसे करने पे यहाँ पे थोड़ा कम आता है। अभी तो काफ़ी आ गए हैं बाल, क्योंकि मैं एटलीस्ट 1 साल से तो यूज़ कर रही हूँ हेयर सीरम्स। पहले मैं पिलग्रिम का यूज़ करती थी। पिलग्रिम का इनएक्सपेंसिव, मतलब इससे तो, इस वाले से तो थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, बट वो क्या है ना, थोड़ा टाइम लेता है। ये वाला ज़्यादा बेटर है और इससे हेयर फॉल भी मेरा कम होता है। कम तो बोलूँगी ऑब्वियसली, मतलब जिस तरह से मैं बालों की केयर करती हूँ। दैट्स इट। एंड बस लास्ट स्टेप ये है। सो मेरी सिस्टर ने भी मुँह धुल लिया। अभी इसका भी आई विल डू फेस रेजर, मैं इसका भी करूँगी। चाची, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी लड़की का फेस रेजर करने वाली हूँ एंड आप मुझे नहीं रोक पाएंगी। मुझे तो मत ट्राई करते। हाँ रुको, ये तो बस ऑयल है। अरे नहीं, रेजर ये तुम मत करना। एक बार मैं करती हूँ। तुम्हें करना, न्यू वाला है यूज करना। ये नहीं वाला है, न्यू है ना, वहाँ पे जो रखा था वो देखो ये है कि नहीं है। ये गीला नहीं है ना, तो ये न्यू है। न्यू तो ये न्यू वाला ही। गाइस अपनी स्किन पे आप लोग हमेशा न्यू ही यूज करना, किसी और का नहीं। सो मैं वही दे रही हूँ, ये न्यू वाला यूज कर लो। एलोवेरा, ये क्या बाबू, इस पे नहीं रखो ये। किसने यूज किया है, किसने रखा है? ठीक है सॉरी। एलोवेरा जेल है ना मेरे मेकअप पाउच में, तो एलोवेरा जेल यहाँ अपर लिप करो, सबसे सेफ एरिया होता है। अपर लिप पे लगा लो और उससे कर लो अपर लिप पे, ठीक है। सो मैं इसकी आईब्रोज, चाची मैं इसकी आईब्रोज भी करने वाली हूँ। सो गाइज ये जो छोटी मोटी टॉक थी ये मेरी चाची के लिए थी। सो ये ऑयल बहुत अच्छा है, 100 रुपये का मिलता है। एंड आई एम गोना अप्लाई यहाँ पे जितना भी क्यूटिकल्स है सब पे। मैंने ज़्यादा क्यूटिकल्स नहीं कट करे बिकॉज इट्स नॉट गुड। क्यूटिकल्स ज़्यादा नहीं कट करने चाहिए, जस्ट बिकॉज इट्स गुड फॉर योर नेल हेल्थ ऑल्सो। देखो देखो क्या ये वही अंशुमा है। मैं पागल हो रही हूँ। गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद मी टिल हियर, और मेरी चप्पड़ चप्पड़ सुनने के लिए, बिकॉज आई नो आई टॉक अ लॉट। एंड नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी माई अथरापल्ली व्लॉग, क्योंकि हम छोटी सी पिकनिक प्लान कर रहे हैं और उस पिकनिक के लिए भी हम थोड़ी सी प्रेप वगैरह करेंगे। वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना। मैं दोनों व्लॉग मोस्ट प्रोबेबली, मतलब जो नेक्स्ट व्लॉग है वो नेक्स्ट डे डाल दूंगी। And that was my hair care and skin care and my nail care and face razor routine. And I'm going to upload more long format videos. And thank you so much for watching till here. And if you have watched it, so please put a white heart in the comment section. And next vlog में मैं आपको पिकनिक पे लेके जाऊंगी मेरे साथ. So तब तक के लिए bye bye.